हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। अब जैसे आप सभी को पता है कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन by considering the wave nature of electromagnetic waves, whereas quantum theory of electromagnetic radiation explain the phenomenon of photoelectric effect, Compton effect by considering the particle nature of electromagnetic wave. So this observation show that the radiation has dual nature. It behaves as a both particle as well as wave nature. So this observation, from this observation, a French physicist Louis de Broglie suggested that every material particle, for example material particle like proton, electron, neutron, must possess both wave as well as particle nature. He said that a wave is associated with every moving material particle and the wave guides the motion of the particle, and that wave associated with every moving material particle is called as matter wave or de Broglie wave. And his suggestion is based on two important assumptions. Number one, the universe made up of radiation and matter. Universe में एक तो matter है या radiation है. And number two, as the nature loves symmetry, so both particle and radiation must be symmetrical. So from this assumption, he said that a wave is associated with every moving material particle and that wave is called as matter wave or de Broglie wave. Okay, अब देखो यहाँ matter wave और de Broglie wave, matter wave और de Broglie wave, the wave associated with moving material particle, the wave associated with moving material particle are known as de Broglie wave or matter wave. De Broglie imagine that light, that is energy, possess both nature, that is wave nature and particle nature. Similarly, matter must also possess both nature, that is particle as well as wave. So de Broglie imagine that despite particle nature of matter, wave must be associated with material particle, and this imaginary wave associated with material particle is known as matter wave. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वेव एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव और de Broglie वेव. मैटर वेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. मैटर वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड हेंस दे आर नॉट अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव मतलब क्या? विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम. But here matter wave like electromagnetic wave can travel in vacuum, hence they are not mechanical wave, that is they do not require any material medium for their propagation. And matter wave are not electromagnetic wave because they are not produced only by accelerated charge particle, but even moving neutral particle produce matter wave. मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है. When they are in motion, the wave is associated with them. Again न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल है, फिर भी when they are in motion उसके साथ भी क्या रहेगा? वेव. मतलब यहाँ पे they are not electromagnetic wave. जैसे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो यहाँ पे मैटर वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय बोथ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन. सो दे आर नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है द वेव associated with material particle in motion is called as matter wave or de Broglie wave. Okay. अब देखो यहाँ expression for de Broglie wavelength. So according to quantum theory, energy of photon is given by equation E is equal to h nu, and according to Einstein mass energy equivalence, the energy of photon is given by E equal to mc square. ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी क्या है? E इक्वल टू h न्यू, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू क्या है? mc स्क्वायर.
तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, और mc स्क्वायर फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे, c बाय लैम्बडा, और mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. यहाँ पे 1c कैंसल, और लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू c. प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, मोमेंटम. सो mc इक्वल टू h बाय लैम्बडा, और लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc. बट मोमेंटम p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. So this wave is called as de Broglie wave और matter wave, and wavelength है lambda is equal to h upon p. ये हो गया for photon. अगर कोई material particle है, if instead of photon we have a material particle of mass m moving with a velocity v, then इक्वेशन 3 बिकम लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है 5 ग्राम 10 ग्राम जो कुछ भी है, एंड दे आर मूविंग विद ए वेलोसिटी v, देन वेव एसोसिएटेड विद देम इज गिवन बाय इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, and if a particle of mass m moving with a velocity v, then de Broglie wave associated with them is given by equation lambda is equal to h upon mv. Okay. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, the wave associated with material particle in motion, the wave associated with material particle in motion is called as matter wave or de Broglie wave. Okay. अब देखो यहाँ कंक्लूजन नंबर 1, de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle, that is lambda is equal to h upon mv. So de Broglie wave is inversely proportional to velocity. जितनी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उतनी de Broglie wave क्या रहेगी, कम. नंबर 2, if the particle is at rest, that is the de Broglie wavelength is infinite. अगर वेलोसिटी 0 है तो 1/0 इंफिनिटी. तो उस समय अगर पार्टिकल एट रेस्ट है, सो डी ब्रॉय वेव एसोसिएटेड विद देम इज इनफाइनाइट. नंबर 3, डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जितना मास ज़्यादा रहेगा उतनी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम क्या रहेगी, कम. फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है जिनका मास कम है तो उनके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा. बट अगर कोई पार्टिकल है, सपोज ट्रक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है तो एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या रहेगी, कम. सो डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. नंबर 4, डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ये किसके ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन रहो, प्रोटॉन रहो या न्यूट्रॉन रहो, अगर दे आर मोशन में, अगर तीनों पार्टिकल क्या है, मोशन में, तो उनके साथ क्या रहेगी, वेव. ठीक है. सो डी ब्रॉय वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. नेक्स्ट है नंबर 5, de Broglie waves are not electromagnetic in nature because EM wave are produced by accelerated charged particle, whereas de Broglie wavelength are produced by the charged particle as well as uncharged particle. मतलब न्यूट्रॉन रहो, इलेक्ट्रॉन रहो या प्रोटॉन रहो, अगर तीनों पार्टिकल मोशन में है तो उनके साथ वेव एसोसिएटेड रहेगी. So de Broglie wave are not electromagnetic nature, are not electromagnetic in nature. Number 6, if the material particle is moving with the velocity comparable to the velocity of light, then mass of the particle changes according to the relation m equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. तो हमने कहा था m naught मतलब क्या, mass of the particle when they are in motion, और m मतलब क्या, द मास ऑफ द पार्टिकल, सॉरी m नॉट क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन दे आर एट रेस्ट, और m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन दे आर इन मोशन. तो अगर बॉडी मूव होती है विद स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट,
तो उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या रहेगा, यम, एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम की जगह डाल दिया एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट इंटू वी। ओके, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, स्टोन, car, etc. do not show wave-like properties. This is because their mass is large and speed is small, and the value of h is extremely small. Hence, the wavelength associated with the macroscopic object is extremely small and cannot be observed. तो यहाँ पे wave associated रहेगी या observable रहेगी only in case of small masses like electron, proton, neutron. ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ब्रॉय वेव और मैटर वेव। तो आपको सिंपली एक ध्यान में रखना है, द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव, एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए फोटोन, सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, where p is the momentum, and if a particle of mass m moving with the velocity, then d Broglie wavelength associated with them is lambda is equal to h upon mv. Okay, अब next important part है d Broglie wavelength of electron moving through a potential difference v. अब देखो यहाँ suppose electron of charge E accelerated through a potential difference V. Electron of charge E accelerated through a potential difference V. Then energy gain 1/2 mv square is equal to E into V. Work done to accelerate the charge particle, so EV equal to 1/2 mv square. अब यहाँ पे क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, या दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू m EV, और m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m EV, और मोमेंटम p इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m E into V. So if electron accelerated by a potential difference of V volt, then momentum associated with them is P equal to under root twice m EV, and de Broglie wave lambda is equal to h upon mv. So lambda equal to h upon under root twice em E into V. So de Broglie wave associated with the electron accelerated through a potential difference of V volt, lambda equal to h upon under root twice m ev, और in terms of kinetic energy lambda equal to h upon under root twice m E into V equal to energy gain, that is kinetic energy. So de Broglie wave in terms of potential difference lambda equal to h upon under root twice m E into V, and in terms of kinetic energy lambda equal to h upon under root twice m into kinetic energy. यहाँ पे E into V और यहाँ पे रहेगा kinetic energy. E पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, देन de Broglie wave is inversely proportional to square root of mass and inversely proportional to square root of charge. और अगर kinetic energy कांस्टेंट है, if kinetic energy constant, then de Broglie wave is inversely proportional to square root of mass. So comparison के न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज है, वो भी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा है कंसिडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V volt. The electron acquire kinetic energy given by 1/2 mv square
electron acquire kinetic energy given by 1/2 mv square is equal to E into V. 1/2 mv square is equal to E into V, और इसको m से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस m e v, और mv इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m e v. Now using the relation for de Broglie wavelength lambda equal to h upon mv and substituting the value of equation 1, we get lambda equal to h upon under root twice m ev. Lambda equal to h upon under root twice m ev, और lambda equal to lambda equal to h upon under root twice m ev, और lambda equal to h upon under root twice m e. ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन E इंटू वी. यहाँ पे h की वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है. अगर h m e की वैल्यू डाल दो तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है. डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी. ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी होल्ड, लैम्बडा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी. तो देखो यहाँ h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई, अगर ये वैल्यू डाल के इसके कैलकुलेशंस करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है 12.27 इंटू 10⁻⁻10, 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन रूट वी. ये हो गया डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटॉन को एक्सीलरेट किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या लेते हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन, वो कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. तो ये वैल्यू डालने के बाद h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m e की वैल्यू कितने आएंगे 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन यूनिट. और अगर मैंने ड्यूटेरॉन लिया होता तो उसकी वैल्यू आएगी 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन. तो सिलेबस में दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी होल्ड. तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m ev, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m e. ठीक है, h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m e की वैल्यू कितनी आती है 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट v. ओके, तो ये हो गया वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी होल्ड. तो ये दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कंपैरिजन के न्यूमेरिकल हर तरह के एग्जाम में पूछे हैं. अब नेक्स्ट है एडिशनल टॉपिक डी ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 times kT, where K is Boltzmann's constant and T be the absolute temperature. So according to kinetic theory, the average kinetic energy of a particle is given by kinetic energy 1/2 mv square equal to 3/2 times kT, where K is Boltzmann's constant. उसकी वैल्यू कितनी आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब देखो यहाँ अगेन इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, पहले 1/2 कैंसल, m से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 3m kT, और mv इक्वल टू अंडर रूट 3m kT. ठीक है, सो सिंस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv, और mv इक्वल टू अंडर रूट 3m kT. सो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू क्या रहेगा h अपॉन अंडर रूट 3m kT. तो दस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आपको ध्यान में रखना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल is given by 1/2 mv square equal to 3/2 times kT, and finally we get the relation lambda equal to h upon under root 3m kT, that is de Broglie wave associated with the particle
इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 60 वोल्ट। अब देखो यहाँ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस em e into v, where m is the mass of electron, e is the charge on electron and v is the potential difference. Again lambda equal to h upon under root twice m, e की वैल्यू आती है 12.27 into 10 is to power minus 10 upon root v. So lambda equal to 12.27 into 10 is to power minus 10 upon under root 60 वोल्ट और रूट 60 की वैल्यू आती है नियरली 7.75। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने के बाद लैम्बडा इक्वल टू 12.27 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 अपॉन 7.75 and after calculation we get nearly 1.58 into 10 is to power minus 10 meter with the wavelength of electron accelerated through a potential difference of V volt, that is 60 volt. Next numerical है de Broglie wavelength of proton is 2 angstrom, that is 2 into 10 is to power minus 10 meter. What is its velocity and kinetic energy? और मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 into 10 is to power minus 27 kg। अब देखो यार लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन एम वी, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन एम वी। सो वेलोसिटी v इक्वल टू h अपॉन एम लैम्बडा। h की वैल्यू कितनी है 6.6 into 10 is to power minus 34। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 is to power minus 27 and lambda 2 into 10 is to power minus 10. तो 6.6 upon 1.67 nearly 4. तो 4 into 10 is to power minus 34 upon 2 into 10 is to power minus 37 minus 27 minus 10. तो nearly आ जाएगा 2 into 10 is to power plus 3 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू होती है आफ्टर कैलकुलेशन 1.98 और राउंडेड ऑफ 2 into 10 is to power plus 3 मीटर पर सेकेंड। एंड नंबर 2 पूछा है काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये यहाँ पे लेना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन। सो 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 is to power minus 27 एंड स्पीड 2 into 10 is to power 3 का स्क्वायर 4 into 10 is to power 6। तो यह आ जाएगा 1.67 into 10 is to power minus 21 जूल, सॉरी 1.67 into 2 into 10 is to power minus 21 जूल और 3.34 into 10 is to power minus 21 जूल। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन होल में निकलना है तो काइनेटिक एनर्जी 3.34 into 10 is to power minus 21 अपॉन 1.6 into 10 is to power minus 19 इलेक्ट्रॉन होल नियरली 2। सो 2 into 10 is to power minus 2 इलेक्ट्रॉन होल और नियरली 0.02 इलेक्ट्रॉन होल। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी associated with it. Next है calculate the momentum of photon if frequency associated with a photon is 5 into 10 is to power 13 hertz और given data है h 6.6 into 10 is to power minus 34 and speed of light 3 into 10 is to power 8।
अब देखो यहाँ मोमेंटम P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी और मोमेंटम P इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सो मोमेंटम P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻13 एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। So 2.2 into 5 into 10⁻21 10⁻⁻8 ऊपर जाने के बाद। सो 11 into 10⁻⁻29 और 1.1 into 10⁻⁻28 यूनिट रहेगा इसका kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल इससे आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।